کہ حکومت کا پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 86 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ پیٹرول 259 روپے 10 پیسے کا ہو گیا، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 32 پیسے کمی کی گئی ہے۔ نئی قیمت 262 روپے 75 پیسے ہو گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل 2 روپے 97 پیسے سستا ہو کر 157 روپے 2 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ مٹی کا تیل 2 روپے 15 پیسے سستا، نئی قیمت 169 روپے 62 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو جائے گا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ اوگرا نے عوام پر ایل پی جی بم گرا دیا۔ فی کلو گرام ایل پی جی 6 روپے 99 پیسے مہنگی کر دی گئی۔ عوام کے لیے بری خبر ہے، ایل پی جی کی قیمت میں 6 روپے 99 پیسے فی کلو کا اضافہ کر دیا گیا۔ ایل پی جی کی فی کلو گرام قیمت 243 روپے 99 پیسے مقرر۔ گھریلو سلنڈر 82 روپے 54 پیسے مہنگا ہو گیا۔ گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2869 روپے 10 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آگے بڑھے، آپ کو بتائیں کہ نجی اسکولز مافیا کا کارروائی کے لیے ہو جائیں تیار۔ کراچی سمیت صوبہ بھر میں داخلہ اور ماہانہ فیس کے علاوہ فیس وصول کرنا غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ محکمہ اسکول تعلیم نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ نجی اسکولز مافیا کارروائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ کراچی سمیت صوبہ بھر میں داخلہ اور ماہانہ فیس کے علاوہ فیس وصول کرنا غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ کراچی والے احتیاط کریں، حفاظتی اقدامات کو اپنائیں۔ کراچی ایئرپورٹ پر منکی پاکس کا مشتبہ کیس سامنے آ گیا۔ جدہ سے آنے والے مسافر کا اسپتال میں طبی معائنہ، 32 سالہ شخص میں منکی پاکس کی علامات پائی گئیں۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے مطابق رپورٹ 36 گھنٹے میں سامنے آ جائے گی۔ سندھ انفیکشن ڈیزیزز اسپتال میں انتظامات مکمل ہیں۔ سمندری طوفان کی بات کر لیں گے جس کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ اسنا کراچی سے دور چلا گیا ہے۔ بلوچستان کی جانب پیش قدمی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں طوفان کے اثرات کم ہونا شروع ہو گئے۔ طوفان کے زیر اثر آج بھی بارش نے خوب رنگ جمایا۔ کہیں تیز کہیں ہلکی بارش سے موسم انتہائی حسین ہو گیا۔ گرمی گئی تو درجہ حرارت بھی گر گیا۔ گزشتہ رات اگست کی سرد ترین رات بن گئی۔ بارش سے کراچی کی کئی شاہراہوں پر پانی بھی کھڑا ہو گیا۔ کورنگی کازوے سمیت کئی جگہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ مختلف اسپتالوں کے اندر اور باہر بھی پانی جمع ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اب رات میں بھی کراچی میں ہلکی سے درمیانی شدت کی بارش کا امکان ہے۔ کراچی سے ہو گیا دور طوفان، کراچی والوں کی آئی جان میں جان۔ سمندری طوفان کا خطرہ ٹل گیا، اسنا کراچی سے دور چلا گیا۔ بلوچستان کی جانب پیش قدمی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس موسمی نظام کی وجہ سے جنوبی اور مغربی سندھ میں مونسون کی معتدل ہوائیں داخل ہو رہی ہیں۔ آج کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر ہلکی سے درمیانی شدت کی بارش کا امکان ہے۔ کراچی میں آج بھی مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش ہوئی۔ PECSH صدر، امپریس مارکیٹ، شیرشاہ، ڈیفنس، خیبان جامی، خالد بن ولید روڈ اور دیگر علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش ہوئی۔ طوفان کے خطرے کے پیش نظر ساحل پر دفعہ 144 نافذ کی گئی تھی، لیکن عوام اسے خاطر میں نہیں لائے اور موسم انجوائے کرنے کے لیے ساحل پہنچ گئے۔ انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث کئیوں بعد چورنگی تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہے۔ موٹر سائیکل سوار راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سول، جناح، نیو کراچی، NICH اور NICVD اسپتال کے باہر بھی پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے مریضوں اور تیمارداروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ہر آدمی کو پریشانی ہے، تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا، وہ روزانہ کا حساب ہے۔ آپ وہ کیوں نہیں لے رہے؟ اس کی فلم بنا کے بھیجے ہوئے، یہ کیا کر رکھا، کیوں کر رہے ہیں؟ پانی آتا ہے تو یہ ہے کہ رات کو بارش آئی تو پانی بھر گیا، تو اب یہ نکالیں گے، پھر بارش آئے گی، پھر بھر جائے گی۔ اور دوسری بات ہے یہاں پہ بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ بہت پریشانی ہے فی الحال یہاں، جو بارش کا پانی جمع ہے، بہت زیادہ پانی ہے۔ کوئی بندوبست اگر ہو جائے تو بہتر ہے۔ کورنگی کازوے پر برسات کا پانی تیسرے روز بھی جمع ہے۔ سڑکوں پر گڑھے اور پانی جمع ہونے سے شہری پریشان۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ متعلقہ حکام کازوے کی صورتحال کا فوری نوٹس لیں۔ بارش کے چکر میں تو ہو جاتا ہے، کھڈے اڈے ہیں اس روڈ میں، سے پریشانی ہے۔ اتنا کھڈا ہے اس کے اندر ہے، نوامی چوک پہ اتنے گاڑی آ رہی ہیں، کسی کی جان لیوا ہو جائے، کچھ چیز ہو جائے کر لیں۔
2 दफ़ा बचा उस गाड़ी में इलेक्शन ऑफिस के सामने। बहुत मुश्किलात है, खड्डा है, अल्लाह ना करे यहाँ गटर होता, गाड़ी चली जाती, चोटें लग जाती, ये बहुत तकलीफ है हमारे लिए। लाइसेंस ब्रांच कोरंगी की खस्ता हाल सड़क पर पड़े गड्ढे ट्रैफिक को मुतासिर कर रहे हैं। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। कराची से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर असना नामी तूफान बना जो अब दूर जा रहा है। भारतीय इलाके रन ऑफ कुछ में डीप डिप्रेशन बनने के बाद इसने समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार की। डीप डिप्रेशन क्या है, ये समुद्री तूफान में कैसे तब्दील होता है, हमारी ज़ाती एंकर कैथरीन भट्टी ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। डीप डिप्रेशन एक मौसमी सूरत हाल है जिसमें हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है। ये उमूमी तौर पर समंदर की सतह पर होता है और इसका आगाज एक आम दबाव से होता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होकर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। जब हवा का दबाव कम होता है तो हवा की तेज रफ्तारी से गर्दिश होती है और यही तेज हवा पानी की सतह पर भी गहराई से असरअंदाज होती है। गर्म समंदरी पानी से उठने वाली नमी भी इस अमल में शामिल हो जाती है जिससे डीप डिप्रेशन मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेता है। हवा मजीद कम होता है और हवा की रफ्तार बढ़ जाती है तो ये अमल एक समंदरी तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सूरज की गर्म शुआएं समंदर के पानी को भाप बनाती हैं। भाप आग से ओझल मॉलिक्यूल्स हवा से भी हल्के होते हैं, आसमान में उड़ते हैं, फजा में आधे मील पर जाकर भाप पानी बनकर बादल बन जाते हैं। भाप की गर्मी बादल का ईंधन जमीन के स्पिन के साथ 80 मील फी घंटा रफ्तार से चलने वाली हवाओं से बनने वाले मौसमी माहौल को महरीम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। समंदरी तूफान में शदीद बारिश, तेज हवाएं और समंदरी लहरें शामिल होती हैं जो साहली इलाकों को तबाह कर। समंदरी तूफान की शिद्दत का अंदाजा इसकी कैटेगरी से लगाया जा सकता है जो कि 1 से 5 तक होती है। कैटेगरी 5 का समंदरी तूफान सबसे ज्यादा तबाहकुन होता है जिसमें हवा की रफ्तार 250 किलोमीटर घंटा से भी ज्यादा रह सकती है। माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस ऐसे तूफानों की शिद्दत और तादाद में इजाफा हो रहा है जिसके लिए हमें मजीद तैयारियों और एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है। बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर और बाहर पानी जमा हो गया जिसकी वजह से मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात का सामना रहा। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला कई रोज से जारी है। सड़कें तो ज़ेरे आब आ ही गईं, अस्पताल भी ना बच सके। सिविल जिना न्यू कराची, NICH और NICVD अस्पताल के बाहर भी पानी जमा हो गया जिसकी वजह से मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात का सामना है। अभी पानी का तो मसला है, सबको पता है, लेकिन वो उतने दिन तक है जितने दिन तक है बारिश तो आज खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, कल से मौसम सही हो जाएगा। पानी आता है तो ये है कि अब रात को बारिश आई तो पानी भर गया, तो अभी ये निकालेंगे, फिर बारिश आएगी, फिर भर जाएगी। और दूसरी बात है यहाँ पे बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं है। दूसरी जानिब मुताल्लिका महकमों की जानिब से अस्पतालों और सड़कों से पानी निकालने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं जिस पर आवाम ने इत्मीनान का इजहार किया है। कैमरामैन दानियल सैयद के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। कोरंगी कॉजवे पर बरसात का पानी तीसरे रोज भी जमा है जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। खुशगवार मौसम शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बन गया। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट। इंतजामिया की नाअहली ने अब्र रहमत को एक बार फिर जहमत बना दिया। सड़कों पर गड्ढे और पानी जमा होने से शहरी परेशान। मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी ताहाल जमा है। ज़ेरे आब सड़कों पर मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ गईं। कोरंगी कॉजवे की शाहरा पर पानी जमा होने से गड्ढे मजीद गहरे हो गए। तीसरे रोज भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। शहरियों का कहना था कि बरसात के मौसम में शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुताल्लिका हुकाम कॉजवे की सूरत हाल का फौरी नोटिस लें। ये क्या पानी की वजह से अंदाजा नहीं हो रहा। एक रोड अगर सही हो तो सही, बंदे को परेशानी में चले जाए। अब हाँ, इस वजह से परेशानी हुआ। अभी तो गाड़ी वहाँ फंस गई थी, 2 बंदे मिलकर उठा रहे थे उसको। बहुत मुश्किलात है, खड्डा है, अल्लाह ना करे यहाँ गटर होता, गाड़ी चली जाती, चोटें लग जाती, ये बहुत तकलीफ है हमारे लिए। इतना खड्डा है इसके अंदर है, नवाई चौक पे इतने गाड़ी आ रही है, किसी की जान लेवा हो जाए, कुछ चीज़ हो जाए, कर लें। 2 दफ़ा बचा उस गाड़ी में इलेक्शन ऑफिस के सामने। खस्ता हाल सड़क पर लाइसेंस ब्रांच के करीब भी बड़े गड्ढे ट्रैफिक को मुतासिर कर रहे हैं। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21।
कराची में हालिया मानसून बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। बरसात का पानी शहर के कई इलाकों से ताहाल ना निकाला जा सका। सिंध हाई कोर्ट के करीब सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है। इसी जगह NICVD का चेस्टमैन यूनिट भी कायम है। शहरी कहते हैं कि सदर मुमलिकत कराची की सूरत हाल का नोटिस लें। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। कराची में हालिया मानसून बारिशें, शहर का मौसम खुशगवार, लेकिन इंतजामी उमूर में सुस्त रवि ने शहरियों का मूड खराब कर दिया। इंतजामिया ने शहर की मरकजी शाहराहों से बरसात का पानी किसी हद तक निकाल दिया, लेकिन शहर के अंदरूनी इलाकों में बरसाती पानी ताहाल मौजूद, जो इंतजामिया के दावों की कलई खोल रहा है। सिंध हाई कोर्ट से कोस्ट गार्ड आने वाली सड़क पर बरसाती पानी मौजूद होने से तालाब का मंजर पेश कर रही है। इसी सड़क पर NICVD का चेस्ट पेन यूनिट मौजूद है, जहां मरीजों को पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी कहते हैं सिंध हुकूमत मेयर कराची नकासियाब का काम कराएं। देख सकते हैं कि बहुत ही बुरा हाल है, गुजरना बहुत मुश्किल है यहाँ से। और ये है कि मरीज हों या ये कोई ऐसा इलाका भी नहीं है कि मतलब कोई हम हब चौकी में खड़े नहीं भाई, सदर टाउन में खड़े हैं हम लोग। और सदर टाउन के होते हुए ये मेरी बैक साइड पे सदर पासपोर्ट ऑफिस है, या रीगल चौक है, या इस तरफ आया चौधरी का रोड है, तो कराची के मशहूर और मारूफ जगहों में शुमार होती है, जबकि हालात आपके सामने हैं। मेयर कराची से रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी यहाँ पे काम कर ले, यहाँ से पानी निकाल दे। यहाँ ये सदर है, इलेक्शन कमीशन ऑफिस नज़दीक है, प्रेस क्लब नज़दीक है, पासपोर्ट ऑफिस नज़दीक है। यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं, यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस बनाते हैं। खिजरा मस्जिद भी नज़दीक, यहाँ पर नमाज जुमा के लिए लोग आते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको बराए मेहरबानी कोई भेज दें। शहरियों ने शिकवा किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 16 बरस हो चुके, शहर की हालत ना बदली। सदर ममलिकत सूरत हाल का फौरी नोटिस लें। जब भी बारिशें होती हैं तो दावे ही होते हैं कि ये है वो है, आपके सामने है। ये रेड जोन एरिया है, रेड जोन एरिया है। जब कराची इंटरनेशनल शहर है तो दुनिया भी देख रही है और हम भी देख रहे हैं। अरसा गुजर गया है, 25-30 साल होंगे शहर का यही हाल है। आप ये हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, पूरे कराची के अंदर जो है ना, इस टाइम के अंदर ये हॉस्पिटल है। पूरे कराची के अंदर आप देख लो, पानी कहीं भी खाली नहीं है। शहरियों का मुतालबा है कि इंतजामिया सड़कों से नकासी आपके काम की मरबूत हिकमत अमली बनाए और शहरियों को मुश्किलात से निकाले। कैमरामैन फरहान के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। एक हफ्ते में डॉलर 4 पैसे इजाफे से 278 रुपये 54 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता हुआ। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में यूरो 3 रुपये 24 पैसे और बरतानवी पाउंड 1 रुपये 14 पैसे सस्ता हुआ। करेंसी मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे बढ़कर 278 रुपये 54 पैसे पर बंद हुआ। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता होकर 279 रुपये 75 पैसे पर आ गया, जबकि माहिरीन कहते हैं कि एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर 11 करोड़ 16 लाख डॉलर इजाफे से 9 अरब 40 करोड़ डॉलर होने से रुपए पर प्रेशर कम हुआ। एक हफ्ते में यूरो 3 रुपये 24 पैसे कमी से 309 रुपये 4 पैसे और बरतानवी पाउंड 1 रुपये 14 पैसे कमी से 367 रुपये 50 पैसे का हो गया। कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल रहे। 100 इंडेक्स 313 पॉइंट्स कमी के बाद 78,488 की सतह पर आ गया। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 26 अरब रुपए का नुकसान हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। अगस्त में FBR का बड़ा शॉर्टफॉल, टैक्स हदफ पूरा न हो सका। FBR का अगस्त के लिए 898 अरब रुपए का हदफ था, लेकिन हदफ से 115 अरब रुपए कम जमा हो सके और टैक्स वसूली सिर्फ 783 अरब रुपए रही। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2023 के मुकाबले अगस्त 2024 में टैक्स वसूली में 17% का इजाफा हुआ, जबकि जुलाई 2024 के मुकाबले अगस्त में टैक्स वसूली 19% बढ़ी। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले रवा माली साल पहले 2 माह में टैक्स वसूली 19% इजाफे से 1441 अरब रुपए रही और टैक्स वसूली हदफ से 113 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रहा। FBR ने रवा माली साल के पहले 2 माह के लिए हदफ 1554 अरब रुपए रखा था, जबकि रवा माली साल FBR ने टैक्स वसूली का हदफ 12,970 अरब रुपए मुकर्रर किया है। अशरफ खान, सिटी 21। वफाकी हुकूमत ने पब्लिक सेक्टर की 50% तिजारत गवादर पोर्ट के जरिए करने का फैसला किया है। वफाकी वजीर बहरी अमूर कैसर अहमद शेख ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहते हैं मसाइल का अंदाज़ा है, ताहम हुकूमत मुआशी तरक्की के लिए इकदाम कर रही है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट।
में रोजगार की फराहमी का मिशन, गवादर पोर्ट को तरक्की देने का अज़म, मैरीटाइम सेक्टर को बेहतर करने का भी प्लान। कराची प्रेस क्लब में साफियों से वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर कैसर अहमद शेख की गुफ्तगू। कहते हैं बलूचिस्तान में तरक्की और रोजगार की फराहमी के लिए पब्लिक सेक्टर की तिजारत का 50% हिस्सा गवादर पोर्ट के जरिए करने का फैसला किया है। बलूचिस्तान में रोजगार बेहतर हो और लोग उनको ये ट्रांसपोर्टेशन का और वो काम मिले। तकरीबन ये तय हो गया है कि 50% आज ही पाकिस्तान की जो पब्लिक सेक्टर में इंपोर्ट होगी वो गवादर के थ्रू होगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो बलूचिस्तान को पुश करने, बलूचिस्तान के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। विफाकी वजीर का कहना था कि आलमी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल अगले माह पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान के मैरीटाइम सेक्टर की बेहतरी के लिए IMO कॉन्फ्रेंस अहम होगी। और पहली बार वहाँ के कोई इतने बड़े एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान आ रहे हैं और वो उनके साथ हम डिस्कस करके इस मिनिस्ट्री में जो हो फर्दर इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं इंटरनेशनली, क्योंकि ये वो मैनेज भी करते हैं। वो हमें इस वक्त मैरीटाइम हालांकि एक ऐसा शोबा है जिससे पाकिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है। विफाकी वजीर के मुताबिक पाकिस्तान में हुकूमती तहवील में चलने वाले इदारों पर 35,000 अरब रुपए लगे हुए हैं। अगर यही पैसा सरमायाकारी करके बैंकों में रखा जाए तो सालाना 6,500 अरब रुपए हासिल होंगे, जो कि हालिया मुल्की खसारे के बराबर है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। साबित हुआ सरमायाकारों के 26 अरब रुपए डूब गए। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 313 पॉइंट्स की कमी हुई और इंडेक्स 0.52% कम होकर 78,488 की सतह पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 79,160 और कम तरीन सतह 77,990 रही। एक हफ्ते में 93 अरब रुपए मालियत के 3 अरब शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 26 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा और मार्केट कैपिटलाइजेशन 26 अरब रुपए कम होकर 10,485 अरब रुपए रह गई। हफ्ते के दौरान मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग में 1 दर्जा बेहतरी कर दी और यूँ पाकिस्तान की रेटिंग CAA3 से बेहतर करके CAA2 हो गई। अशरफ खान, सिटी 21। ताजरों ने एहतजाजन दालों समेत गजाई अजनास की दरामद बंद करने का ऐलान कर दिया। ग्रोसरी होलसेल एसोसिएशन के सदर अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि हुकूमत TCP के जरिए दालें मंगवा ले, हम कोई और कारोबार कर लेंगे, लेकिन विद होल्डिंग टैक्स नहीं देंगे, ना ही विद होल्डिंग एजेंट बनेंगे। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। गजाई अजनास के ताजरों का विद होल्डिंग एजेंट बनने से साफ इनकार। जोड़िया बाजार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कराची ग्रोसरी होलसेल एसोसिएशन के सदर अब्दुर्रऊफ इब्राहिम का कहना था कि ताजर पहले से टैक्स अदा करते आ रहे हैं। विद होल्डिंग टैक्स आयद होने से गजाई अजनास की कीमतें कई गुना बढ़कर शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो जाएंगी। हुकूमत TCP के जरिए दालें मंगवा ले, हम इम्पोर्ट बंद कर रहे हैं। दालों का इम्पोर्ट हम बंद करने जा रहे हैं। दालों का इंपोर्ट हम नहीं करेंगे। जो हमारी कमिटमेंट हो गई है पाकिस्तान गवर्नमेंट से, जाहिर सी बात है हमारा भी पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर रहे हैं। इसके बाद कोई इम्पोर्टर इंपोर्ट नहीं करेगा। दालें हुकूमत वक्त खुद मंगा ले, TCP से भी मंगाया करते थे, वापस मंगा लें। ताजुर से इजहार यकजहती के लिए कराची चैम्बर की नुमाइंदगी करने वाले पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन चौधरी आमिर अब्दुल्ला बोले, हुकूमत होश के नाखून ले, FBR टैक्स जमा करने में नाकाम हो चुका है, अपने काम ताजुरों पर डाल रहा है। ये सरासर FBR का काम है जो मैं समझता हूँ कि नाकाम हो गई है और उसने अपना बोझ आवाम पे डाल दिया, कारोबारी तबके पे डाल दिया है। कारोबारी तबका, शॉपकीपर्स और ये जोड़िया बाज़ार और दीगर जो इलाके हैं ये एक मिनिमम टैक्स तो दे सकते हैं, इससे इनकार नहीं करेंगे। इनके ऊपर जो 60,000 रुपये के आपने फर्रे फेंके हैं ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। ये मिनिमम टैक्स देने में कभी हेजिटेट नहीं करेंगे, लेकिन आप वो काम करें जो हो सकता है इस पाकिस्तान में। दालों के इम्पोर्टर्स और दीगर ताजुरों का कहना था कि मुल्क में खराब मौसम और बारिशों के बाइस मुकामी सतह पर दालों की फसल को नुकसान पहुंचा है। 80% दालें इंपोर्ट की जाती हैं। दालों पर आए 2.5% विद होल्डिंग टैक्स सारिफ तक पहुंचते 50% हो जाते हैं। इतने ज्यादा टैक्स पर कारोबार करना मुमकिन नहीं। हमारा काम है लोगों को दालें जो है वो हर वक्त सप्लाई करना। अगर ये इस तरह की हम पे प्रॉब्लम आई तो हम कैसे सप्लाई करेंगे? आपके इंपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी, गैस, हर चीज़ बढ़ा दी गई है, उसके बाद आपका कारोबार बंद होता जा रहा है। मेहरबानी करें, हमारा साथ दें। बिजनेसमैन एक हम आपकी रीढ़ की हड्डी होती है और तिजारत करते हैं, आपको टैक्स देते हैं और पूरा पाकिस्तान हमारे टैक्सों से चलता है। ताजुर का कहना था कि वो टैक्स देना चाहते हैं लेकिन उन पर टैक्सों का मजीद बोझ न डाला जाए। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।
विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ अजनास की बड़ी मार्केट जोड़िया बाजार आज भी बंद रही, जबकि दिहाड़ीदार तबका शदीद मुश्किलात का शिकार। मजदूर कहते हैं कि ताजिर मसाइल के हल के लिए अपना कारोबार बंद करते हैं और हमारे घरों में फाक़े हो जाते हैं। अयाज राना की रिपोर्ट। हुकूमत की ताजिरों पर टैक्सेस की भरमार, मजदूरों की जिंदगी हुई और दुश्वार। ताजिरों पर हुकूमत की जानिब से विद होल्डिंग टैक्स के लिए दबाव बढ़ गया। ताजिरों ने कारोबार ही बंद कर दिया। रोज कमाने वाला तबका दोहरी अजियत का शिकार। हड़तालों से तंग मजदूर कहते हैं हम क्या करें, जिस दिन मार्केट बंद होती है हमारे घरों का चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता है। आए दिन की हड़तालों से तंग आ गए। हुकूमत और ताजिर कभी हमारे बारे में भी सोचें। आज का ये मसला नहीं है, पिछले तकरीबन ये पूरा महीना ही तकरीबन छुट्टियों में गुजरा है हमारा। पहले 3 दिन बंद, फिर 2 दिन बंद, फिर रात के 2 दिन। अभी रोज कमाने वाला बंदा क्या करेगा, उसको तो रोज चाहिए ना खाने के लिए। बच्चे हैं, सुबह का नाश्ता है, खाना है, पीना है, स्कूल के खर्चे वगैरह ये वो सब कुछ। तो हम लोग घर का किराया वगैरह कहाँ जाएंगे हम लोग कमाने? वो भाई बोलता है हम अपने लिए करें, तुम्हारे को कमा के दे, वो तो देते नहीं हम लोग को दिहाड़ी। तो हम तो सुबह आते हैं, अगर मार्केट बंद होना कोई भी किसी को नहीं देते, ठीक है। ये अभी हड़ताल है, इससे हमारा ही नुकसान है। मार्केटों वालों को क्या है, महंगाई तो है, अभी क्या करे, हुकूमत तो कुछ कर रही नहीं है। अभी हम लोग रोज कमाने वाले हैं। मजदूरों ने हुकूमत से अपील की है कि ताजिरों के मसाइल जल्द हल किए जाएं ताकि उनका रोजगार भी चलता रहे। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ अयाज राना, सिटी 21। एक्सपोर्टर्स दरामदी खाम माल जल्द क्लियर ना होने से फिर परेशान। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी कहते हैं कि गैर ज़रूरी अशिया का दरामदी बिल फिर बढ़ रहा है। डॉलर की किल्लत है और हम पानी, जानवरों का खाना और महंगी गाड़ियाँ दरामद कर रहे हैं। एक तरफ मुआशी मुश्किलात पर IMF से कर्जा लेने जा रहे हैं और कीमती डॉलर गैर ज़रूरी अशिया पर खर्च हो रहे हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट। बरामद कुनंदगान दरामदी खाम माल क्लियर ना होने से परेशान। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी का कहना है कि दरामदी खाम माल को क्लियर कराने की मुश्किल फिर से सर उठा रही है। डॉलर की किल्लत से दरामदी खाम माल क्लियर नहीं होता। दरामदी खाम माल क्लियर ना होने से पैदावार मुतासर होती है। हुकूमती इकदाम से अब रुपए की कदर में इस्तेहकाम तो है, मगर डॉलर की किल्लत अब भी मौजूद है। डॉलर की किल्लत की वजह गैर ज़रूरी दरामदात का फिर से बढ़ना है। हम इस वक्त पानी, जानवरों का खाना, महंगी गाड़ियाँ दरामद कर रहे हैं कि हम हर लग्जरी आइटम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, नॉन एसेंशियल आइटम भी इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास एनिमल फूड भी बेतहाशा आ रहा है, हमारे पास लग्जरी गाड़ियाँ भी आ रही हैं। तो डॉलर तो सारे पाकिस्तान से जा रहे हैं ना। तो जब एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम में है, जब हमें पता है कि डॉलर की शॉर्टेज है, हमें पता है कि पाकिस्तान एक प्रॉब्लम में है, हमारे रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं, हम IMF के पास जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि हम लग्जरी आइटम्स और ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर 1 साल 2 साल के लिए थोड़ी रिस्ट्रिक्शन करें। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी कहते हैं मुल्क की मईशत अब भी मुश्किलात में है, हम IMF से कर्जा लेने जा रहे हैं। उन्होंने तजवीज़ दी कि हुकूमत गैर ज़रूरी दरामदात को कंट्रोल करे ताकि इंडस्ट्री अपना खाम माल क्लियर करा सके। हम इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को इस वक्त बिल्कुल रोकें ताकि हमारा जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसके अंदर आसानी हो, हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ हो, हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। एक्सपोर्टर ने तजवीज़ दी कि हुकूमत एक प्लान बनाए कि एक्सपोर्टर्स और मुकामी इंडस्ट्री का खाम माल पहले क्लियर हो। कैमरामैन हसनैन के हमरा अशरफ खान, सिटी 21।